Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Vahur. Now student, our current topic is alcohol, phenol and ether. And so far in my last two video lecture related to this topic, we have discussed what is alcohol, phenol, ether and its classification in my video lecture number 1. Now in my video lecture number 2, we have discussed only related to alcohol. What is nomenclature pattern of alcohol, and we have tried to cover all three systems. One is your common system of alcohol, carbinol system of alcohol, and next one is your IUPAC nomenclature of alcohol. In last video lecture, all these points we have discussed. Now in today's video lecture, we will try to cover nomenclature pattern of phenol and ether, common system, as well as IUPAC nomenclature of phenol and IUPAC common system of your ether. So now we will try to start our lecture from phenol. Okay, the first part which we are going to discuss, that is related to phenol. Now phenol everyone knows, सबको मालूम है. अब phenol क्या है? Phenols are hydroxyl derivative of benzene. Phenol, it is a hydroxyl derivative of benzene. Now hydroxyl derivative of benzene means we can say from benzene 1H it is replaced by OH. डेरिवेटिव मतलब बना हुआ है. फेनॉल किससे बना हुआ है? बेंजीन से. एंड नाउ दिस हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इट इज कॉल्ड एज फेनॉल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजीनॉल. फेनॉल or the same structure it is called as benzenol. Okay, so another name of phenol is benzenol. Now हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉमन सिस्टम एंड साइमल्टेनियसली IUPAC सिस्टम ऑफ फेनॉल. एक्चुअली फेनॉल इट इज अ कॉमन नेम. Phenol it is a common name and benzenol it is IUPAC name, but the common name phenol it is accepted by IUPAC also. means आप लोग IUPAC में phenol भी बोल सकते and benzenol भी बोल सकते, but in case of common system it is called as phenol. अब लोग आप पूछेंगे सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में? सो इन कॉमन सिस्टम वी विल यूज द प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. अगर मेरे पास में सब्सटीट्यूटेड फेनॉल है तो IUPAC में कॉमन सिस्टम में मैं क्या यूज करूंगा वहां पर? प्रीफिक्स. एंड विच प्रीफिक्स? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. एंड इन IUPAC वी विल ट्राई टू स्टडी या वी विल यूज नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग. IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या यूज करेंगे? नंबरिंग. एंड कॉमन सिस्टम में क्या यूज करेंगे आप लोग? प्रीफिक्स, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. चलो स्टार्ट करो वन बाय वन. एग्जांपल ऑफ फेनॉल. नाउ वी विल राइट फर्स्ट इट्स कॉमन नेम. ओके, कॉमन नेम एज वेल एज वी विल ट्राई टू राइट इट्स IUPAC नेम. कॉमन नेम एंड IUPAC नेम. ओके, नाउ फर्स्ट एग्जांपल. सपोज this structure is given to you. Okay, now this structure it is called as phenol. Common name क्या आएगा इसका? phenol. and IUPAC name benzenol या phenol? IUPAC name क्या आ जाएगा इसका? benzenol या phenol. E of benzene is replaced by OL. E of benzene निकाल के वहाँ क्या अटैच करेंगे अपन? OL. Now instead of this, suppose I am writing here CH3. Now it is called as substituted phenol. क्या बोलेंगे अपन इसको? This is called as a substituted phenol. phenol के ऑर्थो पोजिशन. नाउ आप लोग अगर substitution देखेंगे, now this one is your aromatic ring. Okay, and suppose at this position substituent group is attached. Now this one is my carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, मतलब जो कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, दिस टू नेबरिंग कार्बन इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजिशन. ये जो दो पोजीशन है, ये दो पोजीशन को अपन कौन सी पोजीशन बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन. एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल O. नाउ पोजीशन नंबर 3 and 5. 3 and 5, this position is called as meta position.
Position number 3 and 5, it is called as meta position. Okay, it is represented by symbol M, and exactly parallel this position is called as para position, and it is represented by P. ओके, सो दिस पोजिशन ट्राई टू रिमेंबर, जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच रहेगा उसके जो दो नेबरिंग कार्बन आएंगे दैट आर ऑर्थो, अल्टरनेट कार्बन्स आर मेटा, एंड एग्जैक्टली पैरेलल जो आएगा दैट इज योर पैरा. Okay, O means ortho, M means meta, P means para. Now try to note down this point, and with respect to this structure we will try to write the common system of substituted phenol. Okay, note down this point. Now see here, first example I am writing here Cl, CH3. Okay, CH3. Now in case of IUPAC system, this carbon become our carbon number 1, this one is carbon number 2, 3, 4, 5 and 6, and this CH3 act as a substituent group, so it is called as 2-methyl phenol. Yes, it is called as 2-methyl phenol, yeah, 2-methyl benzenol. It is called as 2-methyl phenol, or it is called as 2-methyl benzenol. ओके, नाउ इन केस ऑफ कॉमन सिस्टम, अगर यही एग्जाम्पल का सपोज वी हैव टू राइट कॉमन नेम, अगर ये एग्जाम्पल का अपने कॉमन नेम लिखना है तो नाउ फेनॉल इज माय रूट नेम, एंड हियर CH3 इज अटैच टू ऑर्थो पोजिशन. ओके, और जब फेनॉल को CH3 अटैच रहेगा उसको बोलते हैं क्रिसॉल. Yes, when CH3 group attached to phenol, this structure is called as cresol, CRESOL. अब वो phenol को CH3 कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रिसॉल. Yes, what is the name of this compound? It is called as O-cresol, it is called as orthocresol. याद रखो, अगर फेनॉल को CH3 ग्रुप अटैच रहा तो उसका कॉमन नेम क्या आएगा, क्रिसॉल. ओके, एंड द IUPAC नेम ऑफ क्रिसॉल इज 2-methyl phenol, या 2-methyl benzenol. E of benzene is replaced by OL. Now next structure, suppose phenol ring is given to you, okay, OH, and at this position CH3 is attached. अब अगर ये पोजीशन पर मैंने CH3 अटैच किया हूँ, फेनॉल को CH3 अटैच रहा, दिस स्ट्रक्चर कॉमन नेम इज क्रिसॉल. ये स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या आएगा, क्रिसॉल. लेकिन अब ये CH3 जो है वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है, मतलब विच पोजीशन, वेदर इट इज ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन. नाउ अल्टरनेट पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एज मेटा, एंड इट इज कॉल्ड एम क्रिसॉल. क्या नेम आएगा इसका, एम क्रिसॉल. बट इन केस ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बोलेंगे अपन इसको, 3-methyl phenol या बेंजीनॉल. This structure is called as 3-methyl phenol, or it is called as benzenol. E of benzene is replaced by OL, and carbon number 3 पर substituent group है, and now our substituent group is CH3. Now come to the next example. Suppose this structure is given to you. Now here OH group is attached, and here NO2 group is attached. Now this structure is given to you. जहां पर भी OH attached है, with respect to this carbon we will decide ortho, meta and para position. अगर मुझे इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन डिसाइड करना है तो मैं OH की पोजिशन देखूंगा. नाउ दिस कार्बन इज इप्सो कार्बन, जो कार्बन को OH अटैच्ड रहा वो इप्सो. अब उसके जो नेबरिंग कार्बन है, नाउ दिस टू नेबरिंग कार्बन्स आर कॉल्ड एज ortho carbon. Alternate carbons, these carbon atoms are meta, and this one is your para. Okay, जहां पर OH attached रहेगा, with respect to that carbon we will assign the prefix. Ortho कौन सा है, मेटा कौन सा है, and para. Okay, so while writing the common name of this structure we will call it para, P nitro NO2. Okay, para nitrophenol.
ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज योर फेनॉल और उसके पैरा पोजिशन पर NO2 अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोफेनॉल. बट व्हाइल राइटिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर, अब अगर इसका मुझे IUPAC लिखना है, सो दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4. इट IUPAC नेम बिकम 4 नाइट्रो. कार्बन नंबर 4 पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? NO2. सो इट इज कॉल्ड एज 4 नाइट्रो बेंजीनॉल और इट इज कॉल्ड एज 4 नाइट्रोफेनॉल. राइट, बेंजीनॉल और फेनॉल दोनों का मीनिंग सेम रहता है. ओके, 4 नाइट्रोफेनॉल और इट इज कॉल्ड एज 4 नाइट्रोबेंजीनॉल. नाउ दिस इज अ पैटर्न टू राइट कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC nomenclature of phenol. So the phenol it is actually common name and it is accepted by IUPAC also. Okay, सिर्फ common और IUPAC में difference क्या रहेगा? IUPAC में अपन numbering start करेंगे, position of substituent group, and in case of common system to show the position of substituent group we will use the prefix O, ortho, M, meta, P, para. Okay, this is the difference between common system and IUPAC nomenclature of phenol. Now in all this example I have written here 3 example. In all cases we have used 1 OH. हर स्ट्रक्चर में कितना OH है? 1. So it is called as monohydric phenol. क्या बोलेंगे अपन इसको? मोनोहाइड्रिक फेनॉल. अब अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप रहा, पॉलीहाइड्रिक फेनॉल रहा, हाइड्रिक मतलब OH, अगर एक से ज्यादा यहां पर OH ग्रुप रहा, so how to write its name? राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट. अगर एक से ज्यादा रहा तो अपन इसका नेम कैसे लिखेंगे? दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कॉमन सिस्टम एज वेल एज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीहाइड्रिक फेनॉल. पॉलीहाइड्रिक फेनॉल का अपन कॉमन एज वेल एज IUPAC विल ट्राई टू कवर. ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट एग्जाम्पल. स्टार्ट करो फर्स्ट एग्जाम्पल. सपोज 2 OH ग्रुप्स आर देयर. Now it is dihydric phenol. It is dihydric phenol. Next structure. Suppose this structure is given to you. Now this structure containing 2 OH group, it is also called as dihydric. Di means 2, hydric matlab OH. Dihydric phenol. Now this structure it is also called as dihydric phenol. अगर मैं ये structure भी देखूंगा तो this structure is also called as dihydric phenol. लेकिन ये तीनों structure में ट्राइहाइड्रिक का एग्जाम्पल अपन आगे इसके बाद कवर करेंगे. लेकिन अगर मैं ये तीनों स्ट्रक्चर देखूंगा, ये तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आ रहा है गाइस? क्या डिफरेंस आएगा इसमें? दैट इज द पोजिशन ऑफ OH. अब यहां पर सपोज दिस वन इज माय कार्बन नंबर 1, सो दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 2. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट. ओके, नाउ कार्बन नंबर 1, 2, 3, okay, 4, 5 and 6. Now this is the numbering pattern, IUPAC rule. Okay, carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फर्स्ट वी विल राइट IUPAC नेम. पहले अपन IUPAC नेम लिखेंगे. अब अपन ने क्या बोले थे? फेनॉल इट इज अ बेंजीनॉल. फेनॉल क्या है तुम्हारा? बेंजीनॉल. ओके, अब जब आप लोग डाइहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक, एक OH रहा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिखते तो E इज रिप्लेस्ड बाय OL. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या करते हैं आप लोग? E इज रिप्लेस्ड बाय OL. लेकिन जब आप लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे, E इज रिटेन, E मैं रिमूव नहीं करूंगा. वही रूल अपन यहां फॉलो करेंगे. इन मोनोहाइड्रिक फेनॉल E इज रिप्लेस्ड बाय OL, बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजीनॉल. लेकिन अगर मेरे पास में पॉलीहाइड्रिक फेनॉल रहा, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप रहे, सो दैट E इज रिटेन, मतलब E अपन रिमूव नहीं करेंगे. E इज रिटेन्ड एज इट इज. ओके, आपको समझ में आ रहा? मैं जब इसका IUPAC नेम लिखूंगा यू विल गेट क्लियर आइडिया. नाउ दिस वन इज योर बेंजीन रिंग. ये कौन से रिंग हो गया आपके? बेंजीन. सो इट इज कॉल्ड एज, सी हियर, इट इज कॉल्ड एज बेंजीन. ओके, E रिटेन करने का, रिटेन मतलब उसको लिखने का. पॉलीहाइड्रिक में रिमूव नहीं करते, सिर्फ मोनोहाइड्रिक में रिमूव करते हैं. नाउ कार्बन OH कितने हैं? 2. प्रीफिक्स इज डाई. OH रहा तो OL ऑल, सो इट इज डाइऑल, बेंजीन डाइऑल. लेकिन वो OH ऑल की पोजीशन क्या रही? 1 and 2, सो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन 1,2 डाइऑल.
Yes, what is the name of this compound? It is called as benzene 1,2-diol. Now this OL all indicate OH group, di indicates दो OH group is there, 1,2 क्या indicate करेगा? OH जो दो OH है, it is attached to carbon number 1 and carbon number 2, so it is benzene 1,2-diol. ओके राइट इट्स IUPAC. या मैं सिर्फ IUPAC डिस्कस कर रहा हूं. राइट इट्स IUPAC नेम. अब इसका IUPAC नेम क्या आएगा? नाउ दिस स्ट्रक्चर इज योर बेंजीन. ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया आपका? बेंजीन. अब हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर? 2. One attached to carbon number 1, second attached to carbon number 3, so it is called as benzene 1,3-diol. What is the name of this structure? This structure is known as benzene 1,3-diol. क्या नेम आएगा उसका? benzene 1,3-diol. Now this structure is, hope you will write the name of this structure. आप लिख सकते हैं इसका नेम. क्या आएगा इसका नेम? It is called as benzene. Now this structure is your benzene. OH attached to carbon number 1 and 4. So it is called as benzene. Okay. Now this structure is benzene 1,4-diol. Yes, name of this structure is benzene 1,4-diol. तो ये IUPAC नेम है. इसमें क्या याद रखने का? मोनोहाइड्रिक अगर फेनॉल रहा या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहा जिसमें 1 OH ग्रुप है, E इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स OL. ओके लेकिन अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप रहा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रहा या पॉलीहाइड्रिक फेनॉल रहा, सो दैट E इज रिटेन. E को रिप्लेस करने का नहीं. सो लाइकवाइज दिस वन इज योर बेंजीन 1,2-diol, बेंजीन 1,3-diol, बेंजीन 1,4-diol. नाउ राइट इट्स कॉमन नेम. अब हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे. नाउ व्हाइल राइटिंग कॉमन नेम, सी हियर फर्स्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2 OH ग्रुप? पोजीशन. अब पोजीशन ऑफ 2 OH ग्रुप मतलब वो दोनों OH ग्रुप ऑर्थो टू ईच अदर है, मेटा टू ईच अदर है या पैरा टू ईच अदर है. अगर दोनों भी नेबरिंग में आ रहे, नेबरिंग कार्बन पर, पड़ोस के कार्बन पर अगर वो अटैच रहेंगे दैट इज ऑर्थो, अल्टरनेट रहेंगे दैट इज मेटा, और 1/4 पैरेलल आएंगे दैट इज योर पैरा. अब अगर मैं यहां चेक करूंगा, सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ 2 OH ग्रुप, क्या आ रहा? पोजीशन ऑफ 2 OH ग्रुप. नाउ 2 OH ग्रुप्स आर एट नेबरिंग कार्बन, दोनों भी नेबरिंग कार्बन पर है. So my prefix is ortho. Okay, मेरा prefix क्या आ जाएगा यहाँ पर? Ortho. Now in this case the prefix is meta because 2 OH groups are alternate position and 2 OH groups are at para position. पैरेलल आ रहा है. अब अगर 2 OH ग्रुप नेबरिंग पोजीशन पर रहे तो ये पॉलीहाइड्रिक फेनॉल का नेम आता कैटाकॉल. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस dihydric phenol? Now this dihydric phenol is called as catechol. Now if 2 OH groups are meta to each other, alternate position कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, now it is called as resorcinol. Yes, resorcinol. Okay, so what is catechol? benzene ring and 2 OH ग्रुप ऑर्थो टू ईच अदर आएंगे, मतलब नेबरिंग पोजीशन पर आएंगे, कौन से भी नेबरिंग पोजीशन पर. एंड आपका रिसोर्सिनॉल क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग एंड OH ग्रुप एट अल्टरनेट कार्बन. OH ये कार्बन ड्रॉप किया अपन ने, OH. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्यूनॉल. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? हाइड्रोक्यूनॉल, और इट इज कॉल्ड एज क्यूनॉल, QUINOL, हाइड्रो अपना क्यूनॉल. और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइड्रोक्यूनोन. Yes, quinol, or this structure is known as hydroquinone. Now this is the IUPAC rules to write the name of phenol, and this one is a common system to write the name of polyhydric phenol, that is your dihydric phenol. ओके, सो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. 2 OH ग्रुप ऑर्थो टू ईच अदर, नेबरिंग कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, कैटाकॉल. अल्टरनेट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, रिसोर्सिनॉल. पैरा पोजीशन पर आ रहे हैं दैट इज योर
quinol, yeah, it is called as hydroquinone. Okay, and its IUPAC name is benzene 1,2-diol, benzene 1,3-diol, benzene 1,4-diol. Hope you will get these structures right, common name as well as IUPAC nomenclature. Now we will take the example of ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, फेनॉल. मतलब ऐसे फेनॉल जिसमें कितने OH ग्रुप रहेंगे, 3, एंड देन वी विल स्टॉप फेनॉल और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन सिस्टम एंड IUPAC nomenclature of ether. Okay, hope you have written this point. Pause your video, आपका वीडियो पॉज करो और ये नोट डाउन करो. इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं क्विक रिवीजन का सेशन लेने वाला हूँ. 1 आवर का सेशन रहेगा, उसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर करूंगा रिलेटेड टू योर, इससे भी अलग अलग एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, स्ट्रक्चर्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. वो क्विक एक सेशन में अपन वो रिवीजन पार्ट कवर करेंगे. ओके, होप यू हैव रिटर्न दिस पॉइंट. मैं रफ करता हूँ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. फेनॉल में ट्राइहाइड्रिक फेनॉल, मतलब ऐसे फेनॉल जिसमें कितने OH ग्रुप अटैच रहेंगे, 3. ट्राइहाइड्रिक फेनॉल मीन्स हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, 3. वन बाय वन वी विल ट्राई टू स्टार्ट. ज़्यादा नहीं, एक दो तीन एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू कवर. नाउ दिस बेंजीन रिंग इज गिवन टू यू. ओके, नाउ OH here, OH and attached here OH. All 3 OH are at alternate position. जितने भी OH है ये कहाँ पर आ रहे हैं तुम्हारे alternate position पर. Okay, now this is my carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, write its IUPAC name. Write its IUPAC name. Now while writing the IUPAC name, first write benzene. जब अपन इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो व्हाट वी विल राइट फर्स्ट, बेंजीन, और उसके बाद में कितने OH ग्रुप है और कौन से कार्बन नंबर को अटैच्ड है वो लिखो ना. OH ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 1, 3 एंड 5. कितने OH ग्रुप है, 3. सो द प्रीफिक्स यूज इज ट्राई. OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल. सो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन 1, 3, 5 triol. What is the name of this structure? It is called as benzene 1, 3 triol. Okay, benzene 1, 3 triol. Okay, OH group attached to alternate position. अब मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है. So what is the common name of this structure? It is called as fluoroglucosinol. कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका, फ्लोरोग्लोसिनॉल. यस, फ्लोरोग्लोसिनॉल. जैसे अपने कैटेकॉल देखे, रिसोर्सिनॉल देखे, हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल देखे, वैसे ये स्ट्रक्चर का नेम क्या आएगा, फ्लोरोग्लोसिनॉल. In case of benzene, 3 OH group attached to alternate position, that is called as fluoroglocinol. Now I think last example sufficient है, इतने examples common system of alcohol, phenol. Okay, now last example is given to you, OH attached at neighboring carbon. Now in such case we can't use ortho meta para prefix. Now this one is my carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, नंबरिंग वो साइड से स्टार्ट करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले आएगा. 1, 2, 3 इज अ रॉन्ग नंबरिंग. अब दिस वन इज योर बेंजीन. हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर देयर, 3. सो द प्रीफिक्स यूज इज ट्राई. OH रहा तो ऑल, बेंजीन ट्राइऑल. क्या नेम आएगा इसका, बेंजीन ट्राइऑल. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, 1, 2, 3. सो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, क्या नेम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1, 2, 3 triol. What is the IUPAC name of this structure, benzene 1, 2, 3 triol. 1, 2, 3 triol. 1, 2, 3 triol. Now its common name is, अब अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, it is called as pyrogalol.
Yes, its common name is pyrogallol. So this is, student, this is all about the common name as well as IUPAC nomenclature of phenol. एक सिंपल पैटर्न है. व्हाट इज फेनॉल? फेनॉल अपन किसको बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. मतलब बेंजीन को क्या अटैच रहेगा? OH. इसलिए अपन क्या करते हैं, क्या E ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय OL. देखो इधर, benzene convert into benzenol. Phenol is also called as benzenol. In case of common system एंड IUPAC सिस्टम, दोनों में फेनॉल ये कॉमन वर्ड रहेगा. सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा? इन कॉमन सिस्टम द प्रीफिक्स यूज आर, which prefix we will try to cover? Ortho, meta and para. And in case of IUPAC nomenclature we will use the pattern of numbering 1 2 3. मतलब जो मेरे substituent ग्रुप रहेंगे उसको अपन इंडिकेट करेंगे नंबरिंग से. लाइक हेयर बेंजीन 1 3 5 ट्राई ऑल. OL मीन्स ऑल काय के लिए? OH के लिए. ट्राई मीन्स 3. 1 2 3 क्या इंडिकेट करेगा? उनका पोजिशन. Okay, now one benzene 1 3 5 triol, it is called as fluoroglycinol. Now benzene 1 2 3 triol, it is called as pyrogallol. क्या बोलेंगे अपन इसको? It is called as a pyrogallol. So this is all about the common system as well as IUPAC nomenclature of phenol. So pause your video meanwhile and note down all examples. वीडियो पॉज करो और आपके हर एग्जाम्पल्स कवर करो. यही पार्ट को मैं मेरे रिवीजन सेशन में विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, पहले आप लोग ये सब नोट डाउन कर लो. इसके अलग अलग एग्जाम्पल विद पॉलीफंक्शनल, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसका नेम कैसा लिखना अपन वो प्रैक्टिस करेंगे. ओके, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है. फर्स्ट ट्राई टू कवर दिस पार्ट. नाउ आफ्टर कॉमन सिस्टम ऑफ एंड IUPAC सिस्टम ऑफ फेनॉल वी आर गोइंग टू डिस्कस ईथर. नाउ अब अपन स्टडी करेंगे कॉमन सिस्टम एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर. ओके, नाउ लेट मी रिवाइज व्हाट इज ईथर. यहां से अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. एवरीवन नोज गाइज, सबको पता है कि ये ईथर क्या है. नाउ ईथर इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन आइदर अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड या एरिल मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स अटैच्ड, और वी कैन से वन अल्किल ग्रुप और वन एरिल ग्रुप इज अटैच्ड. मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक तो दोनों भी अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे, दोनों एरिल ग्रुप अटैच रहेंगे, या वन अल्किल एंड वन एरिल ग्रुप अटैच रहेगा ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ईथर. मेरे से फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा है ईथर इट इज द अनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल. Okay, ether it is the anhydride of alcohol. So different way you can assign the name. अब अलग अलग उसको definition define कर सकते हैं. Okay, now we are going to start first part common system of ether. पहला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम हाउ टू राइट द नेम ऑफ ईथर. अब मैं कॉमन सिस्टम के हिसाब से ईथर का नेम कैसा लिखूंगा. ओके, नाउ माय फर्स्ट एंड बेसिक एग्जांपल CH3O CH3 CH3O CH3. अब ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हूं. नाउ डेफिनेटली मेरा सेंटर पॉइंट है ऑक्सीजन, उसके दोनों तरफ अल्किल ग्रुप अटैच्ड है. इधर जो अल्किल ग्रुप है उसमें एक कार्बन है, एक कार्बन रहा तो अल्किल आता मिथाइल. इधर भी जो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है उसमें भी एक ही कार्बन है, दैट इज आल्सो मिथाइल. सो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम हाउ टू राइट द नेम ऑफ ईथर, पहले मैं वो बताता हूं आप लोगों को. कॉमन सिस्टम के हिसाब से मैं ईथर का नेम कैसा सजेस्ट करूंगा, हाउ टू राइट. सो ईथर आर नेम एज अल्किल अल्किल ईथर. कॉमन सिस्टम के हिसाब से ईथर का नेम कैसे लिखेंगे अपन? अल्किल अल्किल ईथर या डाई अल्किल ईथर. With different examples I will try to cover this point. According to common system how to write the name of ether. कॉमन सिस्टम के हिसाब से अपन ईथर का नेम कैसा लिखेंगे? अल्किल अल्किल ईथर या डाई अल्किल ईथर. अब डाई अल्किल ईथर मैं कब यूज करूंगा? व्हेन सिंपल ईथर इज गिवन. सिंपल ईथर का मतलब रहता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच रहेंगे, उसको सिंपल ईथर बोलते हैं. और जब सिंपल ईथर रहेगा तो अपन नेम कैसे लिखेंगे? डाई अल्किल ईथर. और अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच्ड है या एरिल ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड एज अल्किल अल्किल ईथर. अरेंज देम अल्फाबेटिकली. यही पॉइंट को मैं एग्जांपल में कवर करूं, जैसे मैंने यहां लिखा हूं
CH3O CH3। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्किल ग्रुप अटैच्ड है या डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है? डेफिनेटली सेम है, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, बोथ आर सेम। सो वी विल फॉलो दिस रूल, डाई अल्किल ईथर। नाउ हियर अल्किल ग्रुप इज मिथाइल एंड हियर द कंपाउंड इज ईथर, सो इट इज कॉल्ड एज डाइमेथिल ईथर। क्या बोलूंगा इसको मैं? डाइमेथिल ईथर। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज CH3 CH2O CH2 CH3 is given to you. Now with respect to oxygen, ऑक्सीजन देखने का और उसके दोनों तरफ अल्किल ग्रुप देखो, whether अल्किल ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट। अब यहाँ पर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप क्या है मेरे? सेम। So we will use here prefix di. Alkyl group is ethyl followed by the word ether. So this compound is called as, क्या बोलेंगे अपन इसका नेम? Diethyl ether. What is the name of this compound? It is called as di. क्यों मैंने di यूज किया? क्योंकि मेरे जो एथिल ग्रुप है दोनों भी सेम है। It is called diethyl ether. Now next one, suppose CH3O CH2 CH3. Now this example is given to you. मेरा सेंटर पॉइंट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेक करो, whether अल्किल ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट। चेक करो अल्किल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। अब ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन है, मतलब मेरा अल्किल ग्रुप आएगा इथाइल, और दूसरी तरफ कितना कार्बन है? 1, तो मेरा अल्किल ग्रुप आएगा मिथाइल। इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड देन वी विल फॉलो हियर अल्किल अल्किल ईथर। अब करो ना उसको अल्फाबेटिकली अरेंज, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, सो इट इज कॉल्ड एज, क्या नेम आ जाएगा ये ईथर का? इट इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। यस, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या आ जाएगा? इथाइल, मिथाइल और ऑक्सीजन का ईथर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सपोज CH3O CH2 CH2 CH3. Now this structure is given to you. मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया हूं, CH3O CH2 CH2 CH3। इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेक करो, अल्किल ग्रुप्स आर सेम है या डिफरेंट है। अब अगर सेम रहने दो, डिफरेंट रहने दो, वो अल्किल ग्रुप का मुझे नेम मालूम रहना चाहिए। इधर CH3 है, मीन्स अल्किल ग्रुप क्या हो गया मेरा? मिथाइल। अब इधर कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन मीन्स प्रोपिल, लेकिन प्रोपिल का कौन सा आइसोमर है? प्रोपिल के केस में मेरे पास में एन प्रोपिल भी रहता है, सेक प्रोपिल भी रहता है, आइसोप्रोपिल भी रहता है। एन का मतलब रहता है नॉर्मल चेन, सेक और आइसोप्रोपिल में सेम रहते हैं, मतलब वो जो ऑक्सीजन रहेगा वो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच रहेगा सेक या प्रोपिल में। यहां पर जो मेरा प्रोपिल ग्रुप है वो नॉर्मल है। ओके, तो मेरे एक तरफ ग्रुप आ रहा मिथाइल एंड दूसरे तरफ ग्रुप आ रहा एन प्रोपाइल। ओके, सो वी विल राइट द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर लाइकवाइज, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। Yes, it is called as methyl and propyl ether. Now next one, suppose this structure is given to you, CH3O CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरा सेंटर पॉइंट ऑक्सीजन ही रहने वाला है क्योंकि ये एग्जाम्पल है ईथर का। नाउ चेक अल्किल ग्रुप्स आर सेम है या डिफरेंट है, या उनके नेम क्या है, कैसे है, कितने कार्बन है। यहाँ पर CH3 मतलब एक ही अल्किल ग्रुप है, दैट इज मिथाइल। यहाँ पर जो अल्किल ग्रुप मेरे पास में है कॉमन सिस्टम में लिख रहा हूँ, कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन मतलब मेरा अल्किल ग्रुप हो गया प्रोपाइल। इधर है मिथाइल एंड हियर प्रोपाइल इज देयर। अब प्रोपाइल का जो आइसोमर है वो कौन सा है वो चेक करो। अगर मैं देखूंगा ना, इनके साथ प्रोपाइल, दिस कार्बन इज अ सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन क्या है मेरा? सेकेंडरी कार्बन। ओके, तो मेरा प्रीफिक्स मैं यूज करूंगा सेक प्रोपिल। यस, विच प्रोपिल ग्रुप इज देयर? सेक। उससे पहले मिथाइल, सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मिथाइल सेक प्रोपाइल ईथर। क्या नेम आएगा इसका? मिथाइल सेक प्रोपाइल ईथर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू। राइट, इट्स कॉमन नेम, राइट, इट्स कॉमन नेम। मुझे ये एग्जाम्पल का कॉमन नेम लिखना है। हाउ टू राइट इट्स कॉमन नेम? कैसे लिखूंगा इसका मैं कॉमन नेम? नाउ सी,
दिस इज माई सेंटर पॉइंट, दैट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन आइटम्स है, इट इज कॉल्ड एज इथाइल। दूसरे तरफ 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन आइटम अटैच्ड है उधर? 5। नाउ 5 कार्बन मीन्स दिस वन इज योर पेंटिल एंड दिस वन इज योर इथाइल। इथाइल, पेंटिल, ईथर। लेकिन पेंटिल का कौन सा आइसोमर है? ये अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, नाउ हियर बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम, CH3 CH2 O CH CH3, okay, now then CH2 CH2 CH3, okay, now both structures are same, CH3 CH2 O CH CH3 CH2 CH2 CH3। now this carbon is your secondary carbon। जो कार्बन को मैंने दोनों स्ट्रक्चर में सर्कल किया हूं, ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। ऑक्सीजन आइटम अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। फर्स्ट राइट अल्किल ग्रुप। नाउ दिस अल्किल ग्रुप इज योर इथाइल। ये अल्किल ग्रुप है पेंटाइल, लेकिन पेंटाइल का कौन सा आइसोमर है? सेक। सो इट इज कॉल्ड एज सेक पेंटिल फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। सेक पेंटिल ईथर। नाउ such type of examples are expected, okay, so write the common name of ether। कैसा लिखेंगे अपन common name of ether? the ethers are called as alkyl alkyl ether or dialkyl ether। check करो, simple ether is given or mixed ether is given। hope you will getting this concept, right? in your notebook all examples, pause your video and write all examples in your notebook। so this is all about the common system of ether। now I'm going to touch 2 to 3 examples also related to aromatic ether। अब अपन एरोमेटिक ईथर के कुछ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। एरोमेटिक ईथर मतलब ऐसे ईथर जिसमें बेंजीन रिंग, फेनिल, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड एज फेनिल, फेनिल रिंग अटैच रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर बेंजीन रिंग, ओके, अटैच देयर OCH3, benzene ring attached there OCH3। now this structure I have written, this structure I have written। now in this case with respect to this oxygen, अगर ये ऑक्सीजन मैं देखूंगा तो एक तरफ अल्किल ग्रुप अटैच्ड है CH3 एंड दूसरी तरफ बेंजीन रिंग अटैच्ड है, एंड सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इट इज कॉल्ड एज फेनिल और फिनाइल। substituted benzene it is called as phenyl or phenyl, and this CH3 is known as methyl or methyl। so it is methyl phenyl and followed by the word ether। what is the common name? common name of this compound methyl phenyl ether या methyl phenyl ether, and this methyl phenyl ether it is called as anisole। what is the common name? दोनों भी common name है, it is called as anisole या it is called as methyl phenyl ether। now in this case with respect to this oxygen, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बेंजीन रिंग अटैच्ड है, और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन को कोई अगर आइटम अटैच रहा, कोई ग्रुप अटैच रहा तो उसको बोलते हैं फिनाइल। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल ईथर। डाई का मतलब रहता है 2 और फिनाइल मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग, इट इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल ईथर। और दिस स्ट्रक्चर वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो, C6H5O C6H5। ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, C6H5O C6H5, both structures are same, that is your diphenyl ether। now these are the examples of your substituted benzene ring, that is your aromatic ether। hope आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। now pause your video and note down all these examples that is related to common system of ether। now today's last point we are going to discuss, आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज important and easy concept, IUPAC system of ether। according to IUPAC nomenclature, how to write the name of ether। अब मैं IUPAC के हिसाब से ether का नेम कैसा लिखूंगा? in my simple way according to IUPAC pattern, ethers are named as alkoxyalkane।
अब IUPAC के हिसाब से ईथर का अपन नेम कैसे लिखेंगे? ईथर आर नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन, ये OXY अल्कोक्सी अल्केन। मैं आपको ये 10 एग्जांपल्स लेके पूरा पॉइंट कवर कर रहा हूं, 5 to 10 एग्जांपल्स लेके। ओके, अब देखो अल्कोक्सी अल्केन एक्चुअली इसमें कैसे रहता मालूम है? द लार्जर अल्किल ग्रुप बिकम पेरेंट अल्केन। मेरे सेंटेंस पर ध्यान दो, ये मैं एग्जांपल में क्लियर करूंगा। लार्जर अल्किल ग्रुप बिकम अ पेरेंट अल्केन एंड स्मॉलर अल्किल ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ अल्कोक्सी। मतलब मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ ईथर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो उसमें जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप रहेगा और जो लार्जर, स्मॉलर और लार्जर का मतलब क्या रहता है पता है? स्मॉलर अल्किल ग्रुप मतलब जिसके पास कार्बन कम रहेंगे, एंड लार्जर अल्किल ग्रुप मतलब एज कंपेयर टू अदर उसके पास कार्बन ज्यादा रहेंगे। तो जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप रहेगा उसको अपन काय में कन्वर्ट करेंगे? स्मॉलर अल्किल ग्रुप कन्वर्ट इनटू अल्कोक्सी एंड लार्जर अल्किल ग्रुप कन्वर्ट इनटू पेरेंट अल्केन। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर CH3 O CH2 CH3। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू। मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया हूं, CH3 O CH2 CH3, और ये स्ट्रक्चर का मुझे IUPAC नेम लिखना है। अब मेरे पास पैटर्न क्या है? टू राइट द IUPAC नेम, इट इज रिटन एज अल्कोक्सी अल्केन। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अगर मैंने कंसिडर किया तो उसके राइट में जो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, दैट अल्किल ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन, एंड लेफ्ट में जो अल्किल ग्रुप अटैच्ड है, दैट अल्किल कंटेनिंग 1 कार्बन। नाउ दिस इज माय लार्जर अल्किल ग्रुप, दिस वन इज माय स्मॉलर अल्किल ग्रुप, और ये लार्जर अल्किल ग्रुप को मैं काय में कन्वर्ट करूंगा? पेरेंट अल्केन, और ये अल्किल ग्रुप बनाएगा अल्कोक्सी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, दिस अल्किल ग्रुप बिकम अ पेरेंट अल्केन, एंड हियर द पेरेंट अल्केन इज, मेरा पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा? ईथेन, एंड दिस पार्ट बिकम अल्कोक्सी। अब एक कार्बन रहा तो अल्किल ग्रुप कौन सा आता? मैथिल कन्वर्ट इनटू मिथॉक्सी। यस, मैथिल कन्वर्ट इनटू मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन रहते तो इथॉक्सी, प्रोपिल रहा तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटिल रहा तो ब्यूटॉक्सी, पेंटिल रहा तो पेंटॉक्सी। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी इथेन। क्या नेम आएगा ये स्ट्रक्चर का? इट इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी इथेन। नाउ लार्जर अल्किल ग्रुप बिकम अ पार्ट ऑफ पेरेंट अल्केन, जिसमें ज्यादा कार्बन रहेंगे उसको पेरेंट अल्केन बना देने का। पेरेंट अल्केन समझता ना, 2 कार्बन रहा तो इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डेकेन, 11 कार्बन मोनोडेकेन, 12 कार्बन डोडेकेन, वो पेरेंट अल्केन हो गया। जो बाकी ग्रुप बचेगा उसको कंसिडर करने का अल्कोक्सी। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। नाउ दिस एग्जाम्पल इज गिवन टू यू। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हूँ। अब ये एग्जाम्पल का मुझे IUPAC नेम लिखना है। ये एग्जाम्पल का मुझे IUPAC नेम लिखना है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन, जब मैं ये ऑक्सीजन कंसिडर करूंगा, नाउ दिस कार्बन इज योर इथाइल, अल्किल ग्रुप इज योर इथाइल, और ये अल्किल ग्रुप हो जाएगा आपका 3 कार्बन रहा तो प्रोपाइल, और प्रोपाइल काय में कन्वर्ट होगा? अल्केन में, दैट इज योर प्रोपेन, और इथाइल कन्वर्ट होगा अल्कोक्सी में, दैट इज योर इथॉक्सी। सो डियर स्टूडेंट, हियर माय पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन। मेरा पेरेंट अल्केन यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोपेन। अब अपने को पता है अगर पेरेंट चेन में 2 से ज्यादा कार्बन रहे तो अपन नंबरिंग स्टार्ट करते फ्रॉम दैट एंड। इसका सेकंड रूल आता नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर अल्कोक्सी ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट। नंबरिंग कहां से मैं स्टार्ट करूंगा? वो एंड से जहां से अल्कोक्सी ग्रुप पहले आएगा। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर अल्कोक्सी ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट। नाउ सी, दिस वन इज माय पेरेंट अल्केन। दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3.
नाउ दिस वन इज योर प्रोपेन, दिस वन इज योर इथॉक्सी, और ये जो OC2 CH2CH3 है, इट इज अटैच टू कार्बन नंबर 1, इसलिए इसको मैं बोलूंगा 1-इथॉक्सी प्रोपेन. Yes, what we call it is called as 1-ethoxy propane. Okay, so the IUPAC name of this structure is 1-ethoxy propane. क्या आ जाएगा इसका IUPAC name? 1-ethoxy propane. Now next one, suppose this structure is given to you. राइट इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर. मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया हूं, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है. ओके, नाउ दिस ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन, दिस वन इज माय सेंटर पॉइंट, एंड हियर इट कंटेनिंग 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन. कितने कार्बन आइटम्स हो गए इधर? 5. अब बोला मेरा कौन सा साइड पेरेंट अल्केन रहेगा, कौन सा साइड अल्कोक्सी रहेगा? यस, फास्ट कौन सा साइड मेरा पेरेंट अल्केन रहेगा? नाउ दिस पार्ट बिकम आवर पेरेंट अल्केन. ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट क्या रहेगा आपका? पेरेंट अल्केन. इट कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया मेरा पेंटेन. ओके, नाउ दिस पार्ट कंटेनिंग 2 कार्बन, सो दिस इज योर इथेन. So ethane become ethoxy, और ये रहेगा पेंटेन. दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. सो इट्स नेम इज 1-ethoxy pentane. क्या नेम आएगा इसका? 1-ethoxy pentane. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज CH3 O, okay, O CH2 CH3 CH2 CH3. Now this example is given to you and we have to write its IUPAC nomenclature. ये एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है और मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन के दोनों साइड चेक करूंगा. अब वो दोनों साइड राइट लेफ्ट भी हो सकता है या टॉप बॉटम भी हो सकता है. ओके, अब उसके एक तरफ आ गया मिथाइल, गरीब है बेचारा, एक ही कार्बन है, मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा मिथॉक्सी में. मिथाइल काय में कन्वर्ट होगा? मिथाइल कन्वर्ट इनटू मिथॉक्सी. अब ये जो चेन बचेंगी, नाउ दिस साइड दिस साइड दिस साइड, अगर मेरे आप लोगों ने फर्स्ट 3 एग्जांपल्स देखे होंगे, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट चेन. मेरा जो पेरेंट अल्केन था वो स्ट्रेट चेन था, उसमें ब्रांचिंग थे का नहीं. मेरे पेरेंट जो मैंने अल्केन लिखा था उसमें ब्रांचिंग था क्या? नहीं. नाउ इन दिस केस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच अल्केन. when you will observe this carbon containing attached to more than 2 carbon, so this is the example of branch chain alkane. अब इसमें मैं पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करूंगा, फाइंड आउट करूंगा विच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज देयर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या नहीं. अब अगर ये एग्जांपल को मैं देखूंगा, नाउ सी हियर सिलेक्ट पेरेंट अल्केन कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन. तो अकॉर्डिंग टू माय रूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस चेन बिकम अ पेरेंट अल्केन. ये चेन मेरा क्या हो जाएगा? पेरेंट अल्केन. मतलब ये CH3 जो रहता है इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 and 4. okay, so 4 means butane, 4 means butane and carbon number 2 को क्या attached है? CH3. so the name of this compound is, जब मैं इसका नेम लिखूंगा, it is called as 2-methyl 1-methoxy 1-methoxy and your parent alkane is butane. Your parent alkane is butane. Now 2-methyl, यह है कार्बन नंबर 2 को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. 1-methoxy कार्बन नंबर 1 को OCH3 अटैच्ड है. अरे 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इट इज ब्यूटेन. सो इट इज कॉल्ड एज 2-methyl 1-methoxy butane. Agree? Now next example. Suppose next example, benzene ring. My next example is benzene ring. Attach there O CH2 CH3. Now this example is given to you. मैंने आपको ये example दिया हूँ और मुझे इसका name लिखना है. How to write the name of this structure? Now this one is my benzene.
ये क्या हो गया मेरा बेंजीन. नाउ दिस ग्रुप इज योर अल्किल ग्रुप. सो अल्किल ग्रुप बिकम, जो भी अल्किल ग्रुप रहेगा दैट अल्किल ग्रुप बिकम अल्कोक्सी and this part is your benzene. So it is called as propoxybenzene. The name of this structure is, ये structure का name क्या आ जाएगा? This structure is called as propoxy. 1 2 3 3 कार्बन रहा तो प्रोपिल, और प्रोपिल काय में कन्वर्ट होगा प्रोपॉक्सी, एंड रिमेनिंग पार्ट इज योर बेंजीन. सो इट इज कॉल्ड एज, क्या नेम आ गया इसका? प्रोपॉक्सी बेंजीन. नाउ इट इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. So this structure is called as 1-propoxybenzene. Likewise, now next structure is given to you. Benzene ring attached there OCH3. बेंजीन रिंग अटैच देयर OCH3. अब ये पार्ट मेरा अल्किल ग्रुप है, ये हो जाएगा मिथॉक्सी. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. So it is called as, one कार्बन रहा तो मैथिल, मैथिल कन्वर्ट इनटू मिथॉक्सी. So it is called as 1-methoxy and remaining part is benzene. Now the name of this structure is 1-methoxybenzene. So student, this is all about the common system and IUPAC nomenclature of alcohol, phenol and ether. In video lecture number 2 we have discussed related to alcohol, and आज के lecture में हमने discuss किए how to write common name and IUPAC nomenclature of phenol and ether. Hope you are getting this concept. आपको समझ में आया होगा. Now in my next video lecture we'll try to cover method of preparation of alcohol, उसके बाद में method of preparation of phenol and method of preparation of ether, and some physical and chemical properties of alcohol, phenol, and last one is your ether. So hope you are getting all this concept. Practice it well. Try to follow different books. पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फॉर योर नीट JEE एज वेल एज फॉर योर स्टेट बोर्ड. ओके, थैंक यू.